Namaskar and welcome all of you. Today's program is being hosted jointly by Sanidhya London and Bhavan UK. We really thank Nandaji for this initiative. So I request now well-known Sanskrit scholar and executive director of Bharati Vidya Bhavan, Nand Kumar ji, to inaugurate and start the evening. Nand Kumar ji. Namaste. न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नाहं वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रमः मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा. Friends, hearty welcome to you all for this very special program organized jointly by Sanidhya London and the Bharatiya Vidya Bhavan. I'm so happy to see one of our friends. The program will present musicians, artists, filmmakers, writers, and poets every fortnight. The series has been visualized by none other than our Shri Lalit Mohan Joshi ji, the director of Sanidhya and South Asian Cinema Foundation. It will look into the life and careers of talented people in the above fields which I just now mentioned. Lalit ji has worked with the Bhavan in the past to profile literary giants, artists, filmmakers over the last 2 decades. Today's Samvad, our dialogue, focuses on the life of a very, very unique and a wonderful musician, Pandit Vishwa Prakash ji, who has made special contribution in the field of music composition. He has been a very respected teacher of music and also a composer, a singer, and a brilliant harmonium player. Vishwa Prakash ji was our teacher here at the Bhavan, and now the teacher who is teaching at the Bhavan is also someone suggested by Vishwa Chandrima ji, who is a very close for Vishwa Prakash ji. I take this opportunity to welcome, though our Anup Jalota ji is not here, I extend a very hearty welcome to Anup Jalota ji, one of the very, very special bhajan singers and also a legendary Carnatic vocalist. That's coming from your phone. Srimati Bombay Jayashree ji. And I extend a hearty welcome to everyone else who is here. And I'm so happy to see you all to be part of this very special program, the beginning of many such events which will be held jointly by our Bharatiya Vidya Bhavan and of course Sanidhya Foundation under the able guidance of Shri Lalit Mohan Joshi. Now over to Lalit ji and to you all. Namaste. Thank you so much, Nanda ji. Pandit Vishwa Prakash जयपुर घराने के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायनाचार्य पंडित महादेव प्रसाद जी के पुत्र हैं और मशहूर फिल्म संगीतकार हेमचंद प्रकाश के भांजे हैं, जिनका महल फिल्म का गीत आएगा आने वाला 70 साल के बाद आज भी हम सब की जुबान पर है। संगीत साधना पिछली 16 पीढ़ियों से पंडित विश्व प्रकाश के परिवार की वंश परंपरा रही है। पंडित विश्व प्रकाश जी से मेरी मित्रता 3 दशकों से है और हमने साथ में बहुत कलात्मक सहयोग किया है। आज पंडित जी का सानिध्य मेरे लिए एक अनूठा अवसर है। पंडित जी, आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मशहूर गायिका बॉम्बे जयश्री विशेष अतिथि हैं, जो कर्नाटक संगीत और हिंदी फिल्म संगीत का जाना माना नाम है। बॉम्बे जयश्री जी, आपका स्वागत है। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड, म्यूटेड हैंड। सबसे पहले गुरुजी आपको चरण स्पर्श। Thank you for this invitation, Lalit ji and Dr. Nanda Kumar. I'm grateful to Sanidhya and the Bhavan for extending this wonderful invitation to me. बहुत अरसों से ये एक चाह है मेरे अंदर कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ शब्द कह सकूं।
because as a family, we are grateful to him for the love, for the affection with which he nourished us with music. Today, whatever I am is because of Guruji, and then Guruji who took me by hand and introduced me to my Guruji, Sri Mahavirji. Whatever I see today is through the lens of that beauty and that training that was given to me by this wonderful family. मेरी दो प्यारे प्यारे भाइयाँ हैं, राजू और भवदीप, and I'm always indebted to God and to Guruji for bestowing on me with so much kindness and so much love and affection, and so much art and music. For me, I could only take a drop in the ocean, but I'm so embraced me in that ocean. Pranam, Thank Guruji. you. Pranam once Thank you again. so much for your kind words, Bombay Jayashree ji. So, and as we mentioned, आज हमारे एक खास मेहमान और चेयर अनूप जलोटा जी थे, पर शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। पर हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, पंडित विश्व प्रकाश जी ने 1970 के दशक में नृत्य नाटिकाओं में संगीत से अपने करियर की शुरुआत की और भारत और कई अन्य देशों के कला प्रेमियों को अपनी संगीत रचनाओं से मंत्रमुग्ध किया। भारत की सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा जी, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम आदि ने उनकी रचनाओं को अपने स्वरों से नवाजा है। ब्रिटेन में पिछले 3 दशकों से संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। भारतीय विद्या भवन में संगीत की शिक्षा देने के अतिरिक्त उन्होंने कई नृत्य नाटिकाओं और संगीत कार्यक्रमों का निर्देशन किया है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट BFI में उन्होंने साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन की प्रस्तुति, निरंजन पाल की कालजयी सुन रही है? लाइट ऑफ एशिया, आवाज तो आ रहा था वहां प्रेम से। संन्यास 1925, वीरेंद्र चौधरी जी अपने को प्लीज म्यूट कर लें। प्रेम संन्यास 1925 व दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र 1913 का उपस्थित दर्शकों के समक्ष सजीव संगीत दिया है। बातचीत के पहले विश्व प्रकाश जी की जिंदगी की झलकियों का एक पावर पॉइंट मैं पेश करना चाहूंगा और आप अगर थोड़ा सा इंतजार करें, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं। जैसा कि हमने आप लोगों को पता है कि ये कार्यक्रम सानिध्य और भवन के सहयोग से हमने आयोजित किया है और ये एक पोस्टर जो हमने बनाया था आज के सानिध्य संवाद के लिए। और ये जैसा मैंने आपसे कहा, महादेव प्रसाद जी कथक इनके पूज्य पिता हैं, जो कि बहुत बड़ी हस्ती संगीत की रहे। और ये पंडित विश्व प्रकाश 14 साल की उम्र में हैं। मदन प्रकाश जी इनके 4 बड़े भाइयों में से एक थे, जो कि खुद संगीत के एक हस्ती थे। और अपने भाइयों के बारे में पंडित जी बताएंगे। ये बहुत ही युवा पंडित विश्व प्रकाश, शुरू का एक लीफलेट आप देख रहे हैं और आशा जी के साथ इन्होंने या आशा जी ने इनके गीत गाए और बॉम्बे जयश्री जी अभी उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। धन्यवाद बॉम्बे जयश्री जी, आपसे हम कुछ और भी सुनेंगे। और ये सोनू निगम है जिनके साथ पंडित जी ने रिकॉर्डिंग की थी, इन्होंने इनके गीत गाए थे। बॉबी ऋषि और अरुणी बग्गा बैंकॉक से हमारे साथ हैं। देखें इनको अगर समय मिलेगा तो ये भी कुछ कहेंगे। भारतीय विद्या भवन में आए, शुरू के संघर्ष के बाद भवन में पंडित जी ने काफी सहयोग किया। आप देख रहे हैं शशि पंडित जी को, जो कि पंडित जी की पत्नी है। ये भूतपूर्व हाई कमिश्नर लंदन के स्वर्गीय एलएम सिंघवी के साथ इनकी तस्वीर है। और ये 1925 की मूक फिल्म लाइट ऑफ एशिया, इसका ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में लाइव संगीत दिया था पंडित जी ने, जो कि एक आइकॉनिक कार्यक्रम था। ये वो ऑर्केस्ट्रा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और इसमें पीछे कहीं उत्तरा भी नजर आ रही हैं और पंडित जी हैं और मित्तल पुरोहित हैं
और सहाय हैं तबला वादक। और ये राजा हरिश्चंद्र 1913 की मूक फिल्म है जिसका लाइव म्यूजिक इन्होंने दिया था 2017 में। और ये वो टीम है मिनिस्टर फॉर कोऑर्डिनेशन जी के साथ, और इसमें इनकी पत्नी भी है। ये ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में एक दिन मैंने इनसे वार्तालाप किया था, इनका संगीत पे जो इनका दखल है उस पर बातचीत की थी। और ये शाम गजल कार्यक्रम पिछले साल भवन में आयोजित हुआ था, जो कि उत्तरा को एक तरह से लॉन्च किया था। उत्तरा ने पंडित जी से सीखा है। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, अब हम इस शेयर स्क्रीन को मैं बंद करता हूं। आप एक सेकंड मुझे दीजिए। राइट, तो पंडित जी आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमको बताइए, आप अपनी जड़ों के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने गुरुओं के बारे नमस्कार। सबसे पहले तो ललित जी आपको, नंदा जी आपको, अनूप जी आ जाए उससे पहले ही उनको, आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोगों को नमस्कार। मैं भाग्यशाली था कि मेरा जन्म संगीत के उस घराने में हुआ, जयपुर घराने में हुआ। मेरे पिताजी से पहले सन 1700 से हमारी फैमिली की हिस्ट्री है और हम लोग जयपुर घराने से जुड़े रहे। बाकी राजाओं में भी मेरे बुजुर्गों ने संगीत की शिक्षा दी, संगीत के कार्यक्रम किए। हमारे घर में शास्त्रीय संगीत का वातावरण था। मेरे पिताजी को शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय गायक होते हैं, मेरे पिताजी को गायनाचार्य कहा गया, गायकों के भी गुरु, गायकों के आचार्य, और उन्होंने संगीत में बड़ा योगदान किया। तो मैं भाग्यशाली था कि मेरे गुरु, उनके बाद मेरे बड़े भाई, सभी बड़े भाई रहे जिनके विषय में मैं अभी बोलूंगा। और मैं ये भी भाग्यशाली था कि हमारे घर में मेरे मामा जी पंडित खेमचंद प्रकाश जी बहुत बड़े फिल्मों के संगीत निर्देशक हुए। उनसे पहले हमारे घर में शास्त्रीय संगीत था। मेरे पिताजी ध्रुपद गाते थे। कैसे, मैं झलकियां पेश करता हूं आपकी सेवा में। राग मल्हार। घुमड़ घन घुमड़ गरज बरस मेहरवा, घुमड़ घन घुमड़ बरस मेहरवा, बरसन लागी बूंदन झरी लागी, घुमड़ घन घुमड़ गरज गरजे गरजे। मैं तो बीच में दरबारी भी मिला गया, चलिए कोई बात नहीं। या ठुमरिया या ख्याल गायकी, तेरी साजन घर आए, तेरी या ठुमरिया, माने नाही श्याम प्यारो, माने नाही श्याम प्यारो, विनती करत मैं आली, पैया परत मैं आली, अठ कीनु आभारो। तो ध्रुपद, धमार, ख्याल, स्थाई, तराने, ये सब हमारे घर में गाई जाती थी। खेमचंद प्रकाश जी ने जो फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया और जो ख्याति प्राप्त की, ख्याति प्राप्त तो हमारा घर पहले से था शास्त्रीय संगीत में, लेकिन ये तो विश्व जगत ख्याति थी। इससे आकर्षित होकर मेरे सभी बड़े भाई रागों की ज्ञाता थे, विद्वान थे, शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ थे, लेकिन कंपोजर भी कमाल हुए, महान हुए। जब आप युवा थे पंडित जी, जब आप युवा थे तो खेमचंद प्रकाश जी बहुत बड़ी विभूति बन चुके थे, क्योंकि महल 1948 में आई। तो आपको क्या ये भान था, ये अंदाजा था कि आप उस परिवार के हैं जिसमें इतने बड़े संगीत निर्देशक हैं?
उस जमाने में, जिस जमाने में मैं पैदा हुआ था, बागलक के हाथ में रिश्तेदार आके एक चांदी का रुपया रखते थे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। खेमचंद प्रकाश जी मेरे जन्म पे अमृतसर आए थे और उन्होंने उस जमाने में मेरे हाथ में 100 रुपया रखा था। ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई। आज के मैं 2-3 तो लाख बालक था, रुपए मुझे हुए। पता ही नहीं था। हाँ पंडित जी जी, तो बोलिए। मैं कह रहा था कि खेमचंद प्रकाश जी से प्रभावित होकर मेरे सभी भाई शास्त्रीय संगीतकार होते हुए भी सुगम संगीत में आ गए, कंपोजर बन गए। मदन प्रकाश जी ने 2 फिल्मों में म्यूजिक दिया। उसमें से एक फिल्म का एक मुखड़ा सुनाऊंगा थोड़ा सा। रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नशीली हवाएं जवानी है, चले आओ तुम भी, तुम्हारी कमी है, नशीली हवाएं। रफी साहब के गाने थे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गई। के पन्नालाल जी, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि बेटा सुगम संगीत का अर्थ होता है कि आप महसूस करो कि किस स्वर, किस शब्द को कौन सा स्वर चाहिए। जैसे उनका एक मुखड़ा गा रहा हूँ, मुखड़ा है, उसमें एक शब्द है इंतजार। इंतजार जो है वो कितना तवील और कितना जानलेवा होता है, गाने में उनकी कोशिश थी। दिल को कहाँ करारी तेरे इंतजार में, आंखें है अश्क बारी तेरे इंतजार में। के महावीर जी की विश्वविख्यात गजल के जिक्र कर रहा हूं। आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई, आंख से आंख। उनसे छोटे भाई सुदर्शन जी, क्या जीनियस कंपोजर थे, उनका मुखड़ा गाऊंगा, उन्हीं का लिखा गीत है। जी थके पांव लेकिन बहुत दूर जाना बनेगा, न जाने कहाँ आशियाना, थके पांव लेकिन। तो मेरे सभी बड़े भाई, जो मेरे पिताजी के बाद मेरे गुरु थे, महान कंपोजर थे। मैं उनके पद चिन्हों पर आज तक चलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी तरह पंडित से जी, मेरा बचपन ये बीता। आपके जो भाई पन्नालाल जी थे, उन्होंने जी। इतने टैलेंट के बावजूद, इतनी प्रतिभा के बावजूद, उन्होंने बंबई क्यों छोड़ दिया? क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ अवश्य। बंबई एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को वर्षों लग जाते हैं, चांस नहीं मिलता। पर क्योंकि के पन्नालाल जी ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन की वजह से पहले ही स्टार थे, पहले ही साल में बॉम्बे पहुंचते ही उन्होंने 2 फिल्मों का म्यूजिक दिया। एक थी सिंधी फिल्म लख लहे थी लोड, और दूसरी फिल्म थी पंजाबी सतलुज दे कंडे। सतलुज दे कंडे के जो प्रोड्यूसर थे, वो तीसरी फिल्म बना रहे थे, हिंदी फिल्म। उस फिल्म में वो के पन्नालाल जी का म्यूजिक ले रहे थे, लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि रवि हो, म्यूजिक डायरेक्टर रवि हो। तो ये बात म्यूजिक डायरेक्टर रवि तक पहुंची कि उनकी फिल्म तो के पन्नालाल को मिल गई। तो रवि जी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उनके एक चाहने वाले थे जो अंडरवर्ल्ड से थे, उन्होंने पन्ना जी के पीछे गुंडे लगा दिए और लोगों ने कहा कि के पन्नालाल, अगर तुमने 1 महीने में बॉम्बे नहीं छोड़ी
तो तुम्हारे प्राणों के से हाथ धो बैठोगे। और पन्ना जी ने भरे हुए हृदय से बॉम्बे छोड़ दी, वरना शायद फिल्म जगत में उनका नाम होता। उनके ये जो पंजाबी फिल्म जो सतलुज कंठे थी, उसके गानों को अवार्ड भी मिला। पंडित जी, ये जो ये कारण था सिलसिला उनकी बॉम्बे छूटने का। ये जो सिलसिला है धमकाने का और भगा देने का, ये आज नहीं बहुत पहले से चला है। मतलब ये बड़े बड़ी दुख की बात है कि हमारे हिंदी सिनेमा में जो कि इतनी बड़ी फिल्में बनी है और साथ में इस तरह का माहौल शायद शुरू से ही रहा है। ये तो हमेशा से रहा है, कम रहा होगा, आज ज्यादा है, लेकिन था तो हमेशा से। मैंने भी जो बॉम्बे छोड़ी, मेरा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं था बॉम्बे छोड़ने का। मैं किसी धनाढ्य आदमी के साथ अड़ बैठा था। बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाया अपनी। क्यों करता, मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। लेकिन वो बड़ा आदमी था, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार ही नहीं किया, मेरा भी जीना दूभर कर दिया। तो मैंने फिर बॉम्बे छोड़ी और मैं निकल गया। लेकिन बॉम्बे छोड़ने से पहले मेरी जो कुछ उपलब्धियां हैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि बॉम्बे में मुझे एज संगीत निर्देशक जन्म दिया नृत्य निर्देशक और गुरु पंडित मदन श्यामलता जी ने। पंडित मदन श्यामलता जी जो है वो पत्नी थी, मदन जी उनके पति मदन श्याम के नाम से प्रसिद्ध थे। वो नृत्य निर्देशक थे। उनके साथ मैंने बहुत नृत्य नाटिकाओं का संगीत निर्देशन दिया। श्री विजय श्रेष्ठ और श्रीमती शुभ लक्ष्मी श्रेष्ठ, इनके साथ भी बहुत संगीत दिया। नर्तकों के साथ मैं गोपी कृष्ण जी के साथ, सितारा देवी के साथ, दमयंती जोशी के साथ, हमारे जयपुर घराने की सुश्री रोशन कुमारी जी के साथ, फिल्म एक्ट्रेस बहुत अच्छी डांसर थी कुमुद छुगानी के साथ, जानी पहचानी कथक नृत्यांगना श्रीमती वंदना रानी जी के साथ, इन सब के साथ मैं काम करता था। लेकिन मेरा बॉम्बे में वो जो हुआ, उसके बाद में मुझे बॉम्बे छोड़नी पड़ी। बॉम्बे में एक काम मैंने किया कि जैसे हर गुरु के लिए हर शिष्य ये चाहता है ललित जी कि उसे अच्छा गुरु मिले सिखाने वाला, वैसे हम लोग गुरु लोग कहते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम गुरु लोग भी चाहते हैं कि हमें टैलेंटेड स्टूडेंट मिले। तो बॉम्बे और मुझे जयश्री जो जी बॉम्बे में आपको टैलेंटेड बॉम्बे स्टूडेंट मिले, जयश्री जी ने ऐसे आपसे कैसे सर्वश्रेष्ठ नाम संपर्क है किया? जी। आपने कहा कि हर गुरु चाहता है कि उसको अच्छे शिष्य मिले हैं। तो आपको अगर बॉम्बे में हम देखें तो बॉम्बे जयश्री जी यहाँ मौजूद हैं। वो कैसे आपके आपके पास आई? नहीं, वो मेरे पास कैसे आई मुझे याद नहीं है, या मैं उनके पास कैसे गया मुझे याद नहीं है। पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि बॉम्बे जयश्री की जो माता जी हैं वो खुद कर्नाटक की गायिका हैं, और वो माँ जैसी है, मेरी भी माँ जैसी ही है वो। मैंने उनके हाथ की बहुत रोटियां खाई है। मैं बॉम्बे जयश्री को सिखाने के लिए जाता था और वो मुझे भरपेट खाना खिलाती थी। बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया उन्होंने मुझे। तो उनकी कृपा हुई कि बॉम्बे जयश्री मेरी शिष्या बनी। और बॉम्बे जयश्री में एक बात थी, क्योंकि सुरीली थी, इसके परिवार में संगीत था, जो मैं इसे सिखाता था ये 100% उसको सजा देती थी, सुंदरता से गाती थी। तो और कोई बॉम्बे नमूना में पेश कर, जब कोई नमूना हम लोग रिक्वेस्ट करें बॉम्बे जयश्री जी से, कुछ सुने हम लोग प्लीज क्या? प्लीज आई क्या विल लव टू दृश्य? हियर हर, आई विल लव टू हियर हर। बॉम्बे जयश्री प्लीज आए। आज्ञा आज्ञा गुरु जी, आशीर्वाद। एक मिनट, गाइए ना। सुनाई दे रहा है? जी। दिल को कहाँ करार तेरे इंतजार में, ओ आंखें है अश्क बार तेरे इंतजार में,
दिल को कहाँ करार तेरे इंतजार में। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बॉम्बे गुरु जी, जयश्री जी, आपको क्या बहुत बहुत सिखाया है? आभार आपका। पंडित जी, आप और किसी को, अब इसके पहले कि हम लोग बैंकॉक जाएं, आप बंबई के से किसी और को गवाना चाहते हैं तो बता दें। नहीं, बॉम्बे के लोगों के विषय में आगे बात करेंगे, पर मैं जयश्री से एक बात कहना चाहूंगा। जी, जयश्री, खुश रहो, जियो, और जितना नाम तुम्हारा हुआ है उससे 100 गुना और ज्यादा नाम कमाओ। आज तुमने मेरे सिखाई हुई चीज गा के मुझे प्रसन्न कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, आप बताइए, आप किससे गवा रहे हैं? अभी गवा नहीं रहा मैं। हाँ, अभी हम बैंकॉक पहुंचते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे बॉम्बे छोड़नी पड़ी, जी, तो मैं बैंकॉक चला गया। बैंकॉक में मुझे एक बेटी मिली जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझसे गाना सीखा, और एक बेटा मिला। बेटे, ये दोनों मेरे शिष्य थे। बेटा था बॉबी ऋषि, जो आज भी है, आज भी बेटा है। मैं चाहूंगा कि बॉबी ऋषि को बुलाया जाए। बॉम्बे ऋषि जी, अगर आप हैं तो आप आएं और कुछ कहें। जी जी, नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। और जीते रहिए। सबसे पहले मैं आदरणीय जोशी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मीटिंग का आयोजन किया है और हमें ये मौका मिला है कि पंडित जी के बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ बोलें। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ऐसी दिग्गज हस्ती के बारे में मैं क्या कहूँगा, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बचपन से इस घराने से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री जे.एल. शर्मा जी, जो थाईलैंड में बहुत समय से बसे हुए थे, वो अपनी बचपन में, जवानी में पंडित महादेव प्रसाद कत्थक जी के शिष्य भी रहे थे। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पंडित विश्व प्रकाश जी एक ऑलराउंडर संगीतकार हैं, जिनका रेंज बहुत बड़ा है। सुगम संगीत से लेकर ध्रुपद धमार तक की इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। अपने घराने की परंपरा को बाखूबी निभा रहे हैं, और मैं इनको संपूर्ण कलाकार मानता हूँ, क्योंकि इनमें सब क्वालिटीज मौजूद हैं। वाद्यकार, संगीतकार, एक गायक के साथ-साथ बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। और पंडित जी ने अपने बुजुर्गों का रंग अपनाते हुए एक अलग मकाम भी बनाया है, और जो बहुत मुश्किल काम है। ये बात मेरी समझ में आसान नहीं है, क्योंकि सब अपनी जगह पर दिग्गज कलाकार थे। सबको एसिमिलेट करके अपना एक अलग रंग बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। मेरी समझ में, और जैसा इनका नाम है पूरे विश्व में, ये संगीत को प्रकाशित कर ही रहे हैं, जैसे इनका नाम पंडित विश्व प्रकाश है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बड़ी बात है कि गुरुजी पिछले कुछ समय से एक म्यूजिक की पुस्तक लिख रहे हैं, जो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। इस पुस्तक में बहुत सारी पुरानी ध्रुपद धमार की बंदिशें हैं, जो वक्त के साथ लुप्त हो रही थी, लोगों के सामने पेश की जाएंगी। शायद पहली बार ये गाने की शैली, जिसको हम देववाणी भी कह सकते हैं, ये शैली लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी, और हम सबको सुनने और सीखने का अवसर मिलेगा। मेरी बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि गुरुजी को लंबी आयु के साथ-साथ अच्छी सेहत प्रदान करे, और हमको इनसे सीखने का और मौका मिलता रहे। प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत जीते रहिए। धन्यवाद बॉम्बे ऋषि जी, आपने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए और बहुत अच्छी खबर दी। हालांकि हमें ये मालूम है कि पंडित जी एक किताब लिख रहे हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक गीतकार भी हैं और भजन भी आपने लिखे हैं। ये बात शायद जो लोग आपको देख रहे हैं उनको सबको नहीं मालूम, और आपने कुछ भजन भी लिखे हैं और कुछ भजन आपने हमारे यहाँ जो आपके शिष्य लोग हैं उन्होंने भी गाए हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे या किसी से कोई भजन गवाना चाहेंगे? देखिए, हमारे परिवार में मेरे पिताजी, हमारे परिवार में संगीत और साहित्य एक साथ चला है। मेरे पिताजी भी कवि थे, मेरे सब बड़े भाई भी कवि थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ मैं भी कवि हूँ। और मैं
एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस भजन की एक कहानी है। हम जब दुखी हो जाते हैं, कोई काम स्वयं नहीं कर पाते, तो हम भगवान से मांगने लग जाते हैं, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे दो। लेकिन भगवान ही जानता है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं है। कई बार हम वो भी मांगते हैं जो हमारे लिए अनुचित होता है। इसी बात पर से प्रेरित होकर मैंने कुछ दुनिया में देखा, तो यही विचार मेरे मन में आया, तो मैंने एक भजन लिखा था। वो मैं जिनसे गंवाने चाह रहा हूँ, चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो जरूर बचपन में मजबूरन अपने माता पिता के कहने पर संगीत सीखती थी। उनका मन नहीं था, लेकिन उनके गुरु बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनको ऐसा सिखाया कि आज भी उनके गायकी में वो क्लासिकल खनक है, वो शास्त्रीय संगीत की खनक है, वो तानपुरी की खनक आज भी उनकी गायकी में है। और मैं भाग्यशाली हूं कि वो मुझसे कभी कभी भजन सीख लेती हैं। आइए मेरा लिखा हुआ, मेरा संगीतबद्ध किया हुआ एक भजन कुसुम जी से सुनते हैं। कुसुम जी कृपा कीजिए। कुसुम पंत जोशी, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है। नमस्कार। गुरु कहाँ है? नहीं मिली। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। किसमें है किसकी भलाई ओ दाता, किसमें है किसकी भलाई ओ दाता, तू जानता है, तू ही जानता है, तू जानता है, तू ही जानता है। कैसे मिटेगी बुराई ओ दाता, कैसे मिटेगी बुराई ओ दाता, तू जानता है, तू ही जानता है, तू जानता है, तू ही जानता है। जो भी हो हित में हमारे, वो करना कृपा करके तुम, सुख दुख सहजता से ले दो शक्ति दया करके तुम्ही ने है सबकी निभाई ओ दाता, तुम्ही ने है सबकी निभाई ओ दाता, तू जानता है, तू ही जानता है, तू जानता है, तू ही जानता है। किसमें है किसकी भलाई ओ दाता, किसमें है किसकी भलाई ओ दाता, तू जानता है, तू ही जानता है, तू जानता है, तू ही जानता है। बहुत सुंदर भाभी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, बहुत 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 धन्यवाद। पंडित जी एक सवाल पुलकित प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है आपसे कि आप जो है वो स्टूडेंट हैं उस्ताद सावरकर साबरी जी के, और वो जानना चाहते हैं कि आपके जो अनुभव हैं उनके साथ और अहमद जान थिरकवा के साथ और पंडित किशन महाराज जी के साथ, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ अवश्य। मैं 21 साल का था जब मुझे बंबई में सितारा देवी के साथ में काम करता था।
उनके मेहमान थे त्रिकवा खां साहब। उनका सितारा देवी के घर में प्रोग्राम था। जब सितारा देवी के लोग त्रिकवा खां साहब को कंधों पे उठाकर लाकर बिठाया, मैं देखने लग गया कि बुढ़ा जिससे चला नहीं जा रहा ये तबला क्या बजाएगा। लेकिन तबला जो बोला है तो ऐसा बोला कि जवान का तबला भी क्या बोलेगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ संगत की। मेरा सौभाग्य था कि मैंने बनारस घराने के शांता प्रसाद जी गुदई महाराज के साथ संगत की। मेरा सौभाग्य था कि मैंने बनारस घराने के ही किशन महाराज जी के साथ बरसों संगत की। मेरा सौभाग्य था कि मैं बनारस घराने के ही जो लंदन में रहते थे, हमारे दादा दादा कहते थे हम तो उन्हें, संजू साहे के पिताजी। देखिए मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने वर्षों उनके साथ काम किया है, उनके साथ संगत की। बंबई लंदन में मेरे साथ सभी संजू साहे जी ने, सावरी ने, सरवर सावरी साहब ने और सुखेंद्र सिंह पिंकी ने, सब ने मेरे साथ बहुत काम किया। मैंने उनके साथ बहुत संगत की, बहुत बार नकवा दिया, आज भी देता हूं। तो मुझे लगता है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, आप लंदन में आने के पहले आप बैंकॉक के बारे में, बैंकॉक में जो आपने काम किया उस पर अगर आप थोड़ा सा कहना चाहें ताकि फिर हम लंदन में आ जाएं। बैंकॉक में मैंने हिंदू समाज, बैंकॉक में मैं गाता था, भजन गाता था, हिंदू समाज के लोगों को सिखाता था। बॉबी ऋषि मेरे शिष्यों में से हैं, आज भी हैं। और बॉबी ऋषि ने मुझे 2011 में फिर बैंकॉक बुलाया था, जब मैं इनकी शिष्या से मिला। इनकी शिष्या ना, जिसका नाम, देखिए मैं बूढ़ा हो रहा हूं यार, अरुणी बग्गा। अरुणी अरुणी बग्गा है बग्गा से यहाँ मिला, पे। उनसे बात करते हैं, पहले उनके विषय में सुन लीजिए। ठीक जब है। मैंने अरुणी बग्गा को देखा, उनकी आवाज सुनी, तो मैंने कहा ये लड़की क्या कर रही है, इसे तो स्टार होना चाहिए। तो मैंने बैंकॉक में पहली बार, देखिए गजलों की जितनी भी एल्बम मेरी रिकॉर्ड हुई है, या हिंदुस्तान में हुई है, या पाकिस्तान में हुई है, या यूके में हुई है, बैंकॉक में पहली गजलों की एल्बम रिकॉर्ड हुई जिसका म्यूजिक डायरेक्टर मैं था। गायक थे बॉबी ऋषि और अरुणी बग्गा, और उसका नाम, क्योंकि पहली बार बैंकॉक में हुए थे, मैंने उसका नाम रखा था इब्तदा। और ये एल्बम जो है बड़ी मकबूल भी हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया इसे। आइए अरुणी जी से मिलाइए। अरुणी जी, अगर आप सुन रही हैं तो आप आएं और कुछ सुनाएं। जी नमस्कार। नमस्कार। दादा गुरुजी पैरी पौना शीश झुका के जीते ਤੁਹਾਨੂੰ रहो। बहुत बहुत प्रणाम कर दी। हाँ, ललित मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे इनवाइट किया, उसमें हिस्सा बनाया। और फॉर मी पंडित विश्व प्रकाश जी इज माय दादा गुरुजी। Why Dada Guruji? Because his शिष्य श्री बॉबी ऋषि जी इज माय गुरु, तो वो उनका सपुत्र हैं। तो जब उन्होंने मुझे पहली दफे बैंकॉक में मिले तो तुरंत उन्होंने मुझे देखकर बोला कि तू तो मेरी पोती है। इतने प्यार से, इतनी प्यार की नजर से मुझे देख के, मुझे एम्ब्रेस करके मुझे पोती बना लिया उन्होंने। फॉर मी ही इज लाइक दादाजी, एंड आई एम थैंकफुल टू माय गुरुजी बॉबी ऋषि जी, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। ही इज अ गॉड सेंट टू मी। बिफोर आई मेट दादाजी, Lalit ji, if you believe in love at first sight, then you would definitely believe in love at first sound, which I had experienced it. In 2010, my guru Bobby Rishi ji went to UK and he had recorded Dadaji's voice. He was singing one ghazal, Sadma to hai mujhe bhi. तो उन्होंने मुझे वापस आकर बैंकॉक में उनकी आवाज सुनाई, तो मुझे इतना वो अच्छा लगा और आई फेल इन लव विद दादाजी's गायकी, इनके घराने की गायकी में मतलब मैं फिदा हो गई। तो जब कहते हैं ना कि आप किसी को चाहो या आप इफ यू वांट टू मीट समवन डियरली, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है।
and God granted my wish. In 2011, Dadaji came to Bangkok. He revisited Bangkok after 28 years. And that's how I met him. And we did album together, Ittada. This is the album in my hand, which I sang a duet with my guru, Bobby Rishi ji, Pandit Vishnu Prakash ji as a composer. And here is unka nephew hai Rajiv Mahavir. इन्होंने तबला बजाया और अरेंजमेंट भी किया. एक छोटा सा टुकड़ा आप सुना सकती हैं हम लोग को? जरूर जरूर, डेफिनेटली. दादाजी इजाजत. जीते रहिए. एक मैं अच्छी खबर दे दूं, अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, वो इंटर करने वाले हैं, तो हम लोगों को सबको खुशी है कि वो आ रहे हैं. जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, कसम खुदा की, कसम खुदा की, उसी से फरेब खाया है, जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है. बहुत गुरूर था होशो हवास पर अपने, बहुत गुरूर था होशो हवास पर अपने, नजर जब उनसे मिली है तो होश आया है, नजर जब उनसे मिली है तो होश आया है, कसम खुदा की, उसी से फरेब खाया है, जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है. क्या बात है, बहुत बहुत खूब. अरुणी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनूप जलोटा जी हमारे साथ आ गए हैं. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्लीज गिव हिम अ म्यूटेड हैंड. ही इज आवर चीफ गेस्ट टुडे. बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी. आपसे हम लोग इस कार्यक्रम की बातचीत के बाद आपसे, आप चेयर भी हैं, आप विस्तार से अपनी बात कहेंगे, पर थोड़ा सा आप दो एक शब्द आप बोल दीजिए. आप अभी अभी आए हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए. जी हाँ, जी हाँ. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब आज विश्व प्रकाश जी को आदर देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. हम सब विश्व प्रकाश जी की बहुत इज्जत करते हैं. इनको हम भारत से कभी बाहर नहीं जाने देते, लेकिन इसलिए जाने दिया कि इनको पूरे विश्व में प्रकाश करना था. नहीं तो हम नहीं जाने देते. लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि आप विश्व में प्रकाश करिए, हम इंडिया संभालेंगे. बहुत खूब, बहुत खूब. अनूप जी, आप अपना थोड़ा सा लाइट बढ़ा लीजिए. आप, हम चाहते हैं आपके पास भी थोड़ा और प्रकाश आए. तो विश्व प्रकाश जी आपके पास भी आए.
बहुत बहुत शुक्रिया आप आए अनूप जी। तो हम आपसे बहुत जल्द आपका वक्तव्य सुनेंगे पंडित जी पे थोड़ा विस्तार से। तो हमारी कुछ बात रह गई है, तो पंडित जी अब आप बताएं, जरूर करें। अरुणी जी के और बॉबी ऋषि के बाद अब आप लंदन में आ जाएं, कि लंदन में आकर आपने कैसे अपनी जगह बनाई। इससे पहले तो मैं लंदन में आऊं, मैं पहले अनूप जी को नमस्कार कहना चाहूंगा। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने मेरा मान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी ललित जी कहा था कि मैंने अरुणी में एक स्टार देखा और उसे मैंने रास्ते पे चला दिया और वो चल पड़ी, और ऐसी चली कि उसने गजलों की एल्बम ही ने बनाई और एल्बम में बनाई, रिकॉर्डिंग्स की, और थाई गाने भी गाए, और यहाँ तक कि थाई फिल्मों में इसने एक्टिंग भी की और प्लेबैक सिंगिंग भी किया। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। बात है, वाह 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 वाह। मेरी पोती अगर इतना नाम करे तो मेरे लिए फख्र की बात है। फिर चलिए ललित जी, आप क्या मानते हैं। मैं बॉम्बे आ गया, वहां से बॉम्बे आके मैंने सबसे पहले तो यहाँ के एक सिंगर थे कालिया, उनकी एल्बम की, जिसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, 2 लाइनें गाऊंगा, अनूप जी सुनिए। जी हाँ, सुनाए। पैसे नाल, पंजाबी एल्बम थी। पैसे नाल इश्क कमाया नहीं जांदा, पैसे नाल इश्क कमाया नहीं जांदा, रोग में दिला ताई लाया नहीं हो जांदा, रोग में दिला ताई लाया नहीं हो जांदा, पैसे नाल इश्क कमाया नहीं हो जाता। ये बहुत मशहूर हुआ। उन्हीं दिनों में यहाँ के भंगड़े के किंग चन्नी सिंह मेरे शिष्य बने। उन्हीं दिनों में और भी कार्यक्रम हुए। फिर मैं घूमता फिरता वापस भारत चला गया। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। जब भारत चला गया तो मुझे फिर वापस यहाँ पर श्री प्रताप पवार ने वर्क परमिट पर बुलाया। श्री प्रताप पवार के साथ मैंने उनकी कंपनी में एज संगीत निर्देशक और गायक के तौर पर काम किया। और उनके बाद तो यहाँ की नृत्यांगना है, उनकी अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया पवार जी के साथ मैंने बहुत बहुत काम किया, आज भी करता हूँ। सुषमा मेहता, अपने नीलिमा देवी आदि कितने कथक डांसर, खासतौर पर यंग डांसर जैसे जानकी मेहता और संजू साहे, जो आजकल बनारस घराने के किंग है, उनकी पत्नी जेमिनी संजू साहे के साथ आज भी काम करता हूं। तो मैंने काम किया और संगीत भी सिखाया। प्रिया जी के साथ आपने एक काम किया था, पैरेलल वर्ल्ड, जिसमें कि उत्तरा ने भी गाया था, वो बहुत अद्भुत नृत्य नाटिका थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने कई नृत्य नाटिकाओं का संगीत निर्देशन दिया, श्री प्रताप जी के साथ, प्रिया पवार के साथ। जो पैरेलल वर्ल्ड आप कह रहे हैं, इसकी 2 नृत्य निर्देशिकाएं थी, श्रीमती प्रिया पवार और अपने सुषमा मेहता। पैरेलल वर्ल्ड में सूफीज्म पर था ये, तो उसका पूरा म्यूजिक सूफीज्म पर बेस्ड था। और उसमें उत्तरा मेरी शिष्या, उसने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा गाई। आगे चल के आपसे उत्तरा से गाना सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी उसके बाद में बात करूंगा। फिर मुझे जो प्रिया जी के साथ, प्रताप जी के साथ काम करते करते समय हो गया, तो नंदा जी की कृपा हुई। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नंदा जी की कृपा हुई और मुझे भारतीय विद्या भवन में उन्होंने एक संगीत शिक्षक के तौर पर रख लिया। और मैंने नंदा जी के रूप में सिर्फ एक बॉस नहीं पाया, एक मित्र पाया। मैं जो भी भारतीय विद्या भवन में करना चाहता था, वो मुझे हर बात की फैसिलिटी देते थे। और मैंने इतने कार्यक्रम किए, इतने लोगों को मंच तक पहुंचाया। एक कार्यक्रम होता है ललित जी, मंच प्रवेश जी। शिष्य जब गाना सीखता है, तो जब वो इस पराकाष्ठा तक आ जाता है कि वो प्रोफेशनल सिंगर बन सकता है, तब उसका कार्यक्रम मंच प्रवेश से शुरू किया। वो मैंने 6 शिष्यों को उस स्तर तक भवन में पहुंचाया। भवन में लोगों ने मेरे साथ इतनी मेहनत की, नंदा जी की इतनी कृपा रही मुझ पर। उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि मैं बॉम्बे जाकर रिकॉर्डिंग्स भी करता था। उन रिकॉर्डिंग्स में अनूप जी की कृपा हुई, अनूप जी ने मेरे लिए बहुत गाया।
सुरेश वाडकर ने गाया, अपने अनुराधा जी ने गाया, और अनूप जी और अनुराधा जी ये दो ऐसे गायक थे जो एल्बम का म्यूजिक करने के लिए मुझे यहाँ से बुलाया इन्होंने। वाह 2 बार मैं गया। अनूप जी के लिए एल्बम की थी भक्ति स्नेह, जिसके भजन बहुत प्रसिद्ध हुए, अनूप जी की कृपा हुई, उन्होंने मेरे संगीत निर्देशन में गाया। मेरी अनुराधा पंडित जी की जी, एल्बम हुई थी मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई के पंडित जी, भजन थे। मेरे बहुत मेरा साहस नहीं है कहने का, पर मैं आपके थ्रू अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अनूप जी, उनसे भी आप थोड़ा सा गवा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अनूप जी के विषय में मेरे विचार कुछ और हैं। अच्छा, लोग उन्हें भजन गायक के तौर पर जानते हैं, लोगों ने उनसे गजलें भी सुनी हैं, सुनते हैं, प्रसिद्ध वो भजन गायक के तौर पर हैं। पर अनूप जी मेरे विषय में एक परफेक्ट सिंगर हैं। वो गजल शास्त्रीय संगीत के गजल इतने किंग ज्ञाता है। हैं, हाँ। इतने ज्ञाता हैं शास्त्रीय संगीत के, कि वो सब कुछ कमाल गाते हैं। मैं भी अनूप जी से प्रार्थना कर रहा हूं, अनूप जी मैं आपको याद दिलाऊं मेरा कोई भजन, या आप अपनी मुझे तरफ से याद कुछ गा दिलाइए। दीजिए। मैं तो गा ही दूंगा, लेकिन एक अनूप जी आपका पहला भी गाऊंगा भजन ना, वो जो 2 लाइन आपने मेरा गाइए। गाया था, हाँ जी जी। कैसे मिलेंगे दर्शन भगवन हमें तुम्हारे, आ मैं तो सुनाता हूँ। गए हैं कैसे लेकर। कैसे मिलेंगे भगवन दर्शन हमें तुम्हारे। ये आपका अंदाज है विश्व प्रकाश जी, मुझसे नहीं निकल रहा था, बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी आपने थी। खूब ये गाया, आपका है, आपका ही था ये। अनूप जी आपने कैसे, खूब गाया। देखिए, कैसे मिलेंगे दर्श, ये आपका ही अंदाज है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं स्टूडियो से बाहर नहीं निकला जब तक ये ठीक से मैंने गाया नहीं। मैं नहीं निकला बाहर। मैंने कहा विश्व प्रकाश जी ये मेरे ठीक कराइए लाइन, मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं आज। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि अब ठीक है, तब मैं कुर्सी से उठा, नहीं तो मैं बैठ के गाता ही रहा तब तक। क्या अनूप बात है, जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अनूप जी मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं। आपने मेरा ये भजन गाया नहीं, आपने इसको सजा दिया। अरे तो आपका बड़प्पन है, आप बोल रहे हैं पंडित जी। आपने आपका सजा दिया, बड़प्पन। बहुत सुंदर गाया। आपने मेरे सारे भजन बहुत सुंदर गाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत उस मजा जमाने आया में था, बहुत मजा अनूप आया जी, था। बहुत शुक्रिया ललित जी, जी। उस जमाने में मैं जब बॉम्बे जाकर रिकॉर्डिंग करता था तो 2 लोग मेरा साथ देते थे। एक तो मेरे गुरुजी के पुत्र राजीव महावीर, जी, राजीव महावीर जी शायद हैं यहाँ पे। और दूसरे पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी के पोते पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के बेटे भवदीप जयपुर वाले, जो खुद बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे मेरे गायक। अरेंजर हुआ करते थे। जी जी, वाह। अगर इनसे 2-2 शब्द सुना सके तो बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजीव महावीर जी, आप कुछ कहें आज की संध्या के बारे में और पंडित जी के बारे में। पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और अनूप जी को और बाकी सब ग्रेट 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 लोगों को। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से एक ही कोहिनूर गया था यूके को, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। हमारे एक कोहिनूर जो है हमारे खानदान के वंश के, हमारे पिता समान चाचा पंडित विश्व प्रकाश जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूके बहुत भाग्यशाली है कि वो बहुत वहाँ है, और हमें एक इंस्टीट्यूट के तौर पे मिलता है इनसे कोई भी सीखना, इनके अंदर काम करना, इनसे अनूप जी के साथ काम करना। तो चाचा जी से आज भी हम सीख रहे हैं, और भगवान करे कि जब तक हम रहें तब तक इनसे सीखते रहें, ताकि हमारी जिंदगी में म्यूजिक की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ऐसी ऐसी कंपोजिशंस के जिसे एक को साध लो तो ऐसे लगता है जैसे ना जाने कितनी सारी चीजें का एक असर मिल गया है, कितने सारे रास्ते मिल गए हैं। तो चाचा जी के लिए यही कहना है कि
इनका आशीर्वाद है कि ये हमें सिखाने के मौके भी काम करते हुए देते हैं कि चलिए आके सीख लीजिए, ये मैंने कंपोज किया है, ये मैं आपको अरेंज करना है, ये आपको, तो इससे बेहतर लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। और लोगों को घर नहीं मिलते और हमें घराना मिला। घराने में ऐसे हमारे बुजुर्ग, और अनूप जी भी, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई और परिवार है, ये सारे हमारे परिवार है, हम इस परिवार के बच्चे हैं। ये नहीं पता चलता कि कौन किसके घर में रह रहा है, इतना ही फर्क है। मेरी कैरियर की शुरुआत भी अनूप भाई साहब ने एक दफे नहीं की, कई बार की है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ सिर्फ मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इससे शायद मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में उद्गार व्यक्त किए, और मैं तो कहता हूँ ये सानिध्य का भी एक सौभाग्य है कि हमारे सानिध्य संवाद में आज न केवल पंडित जी हैं, बल्कि आप जैसे लोग हैं, अनूप जलोटा हैं, अरुणी बग्गा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बिना समय गवाए मैं भवदीप जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वो भी बोल लें, ताकि फिर हम आगे चलें और समापन करें समाचार कार्यक्रम का। भवदीप जी। नमस्कार सभी लोगों को, और मेरे आदरणीय मेरे मामा जी पंडित विश्व प्रकाश जी को चरण स्पर्श। और उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे एल्बम्स मैंने एज एन अरेंजर की हैं और उनको असिस्ट किया है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे अरेंजर बनने में पंडित विश्व प्रकाश जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं पहले गिटार बजाता था और मुझे अपने रिकॉर्डिंग्स में मामा जी गिटारिस्ट के तौर पर रखते थे, और कैसे हारमोनी लिखते हैं, कॉर्ड चार्ट कैसे लिखते हैं, ये मुझे मामा जी ने सिखाया जब मैं सिर्फ 16 वर्ष का था। और वहीं से मेरी यात्रा एज एन अरेंजर शुरू हुई, और इनका हर गाना अरेंज करना एक चैलेंज होता था, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशंस जो है वो सरल सुनाई देती हैं लेकिन सरल होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक चैलेंज होता था, और बड़े प्यार से ये काम लेते हैं। और ये खुद इतने बड़े अरेंजर हैं, इतने बड़े कंपोजर हैं, अरेंजर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, और हमेशा ही यूज्ड टू गिव अस अ फ्री हैंड कि आप जैसा करना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हैं, मैं सिर्फ सुनूंगा। और कभी भी इन्होंने यानी जिस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर्स की आदत होती है कि वो अपना दखल रखते हैं और अपना दखल रखते हैं और अपने विचार रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दे हैव फिक्स्ड आइडियाज। तो पंडित विश्व प्रकाश जी बहुत मुक्त हैं म्यूजिकली, और ये ध्रुपद धमार के, ख्याल के, ठुमरी के, तराने के, गजल के, गीत के, भजन के इतने बड़े विभूति हैं ये, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक को भी उतना ही प्यार दिया है। इनका हार्मनी का सेंस किसी भी बड़े अरेंजर को छोटा साबित कर सकता है, ऐसा इनका हार्मनी का सेंस है, जो मैंने महसूस किया है, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है इनसे। थैंक यू सो मच मामा जी फॉर एनलाइटनिंग अस, और आपके दर्शन हुए इन सब विभूतियों के साथ। अनूप भाई साहब को भी मेरा प्रणाम, नंदा जी को, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ऐसी बात पंडित जी के लिए कही है जिससे मैं भी ये कहने को बहुत आतुर हूँ कि पंडित जी बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, पर इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको पूरी आजादी देते हैं। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं इसका अनुभव मैंने तब किया जबकि आज से 2011 में SACF साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था निरंजन पाल पे, और हमने ये योजना बनाई कि लाइट ऑफ एशिया को हम उसका लाइव म्यूजिक दें, साइलेंट फिल्म का। तो मैं BFI के जो हमारे जो बॉस थे उनके पास में गया, मैंने कहा हम इसका लाइव म्यूजिक देना चाहते हैं और पंडित विश्व प्रकाश जी के जो इसको दे सकते हैं। तो उनको लगा कि क्या वो दे पाएंगे, तो फिर एक मीटिंग हम लोगों ने अरेंज की।
तो पंडित जी ने कहा कि मैं सोच के आपको बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम 20 दिन चाहिए और ये फिल्म चाहिए। और वो फिल्म इन्होंने कम से कम इन्होंने बताया कि शायद 50 या 60 बार देखी और उसका म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया और पूरा हॉल भरा हुआ था और लोग रो रहे थे इस फिल्म में देख करके। पंडित जी, आपने जो हमारे साथ जो सहयोग किया है, फिल्मों में आपने जो लाइव संगीत दिया है राजा हरिश्चंद्र में और लाइट ऑफ एशिया में, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ललित जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा अनूप जी के बारे में। जी। मैं जो मुंबई में सक्सेस हुआ, मेरा ट्यूशन वर्क जो चला, उसमें मुझे पहली ट्यूशन जो मिली वो अनूप जी के पिताजी की कृपा से मिली। अच्छा। वो इतने बड़े गुरु थे उस समय कि उनके पास इतने शिष्य थे कि उनके पास समय नहीं था। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि एक बच्चा आया है, लड़का आया है, उससे सीखना शुरू करो, अच्छा है। तो मारवाड़ी समाज में जो मुझे सम्मान मिला वो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरा जीवन इस बात में बीत गया कि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि मैं पंडित महादेव प्रसाद जी का बेटा हूं शास्त्रीय संगीत में, मदन प्रकाश जी, के पन्नालाल जी, के महावीर जी और सुदर्शन जी जैसे महान कंपोजरों का छोटा भाई हूं, शिष्य हूं। मैं जब भी कंपोज करने बैठता हूं, मेरे ध्यान में एक ही बात होती है कि कहीं मेरी कंपोजिशन को सुनकर कोई ये न कहे कि भाई उनका बेटा, उनका छोटा भाई, उनका शिष्य ऐसा इतना बुरा कर रहा है। उसी तरह से ललित जी, आपने मुझे एक बात सिद्ध करने का अवसर दिया उस साइलेंट फिल्म का म्यूजिक करवा के मुझसे, कि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि मैं खेमचंद प्रकाश जी का भांजा हूं। बिल्कुल, बात बिल्कुल। फिल्म का म्यूजिक करने की थी। वाह 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 पहले मैंने उस फिल्म की स्पीड को नोट किया। जी। उस स्पीड के हिसाब से अलग अलग दृश्यों में अलग अलग तारें सोची मैंने। फिर उस फिल्म के दृश्यों के हिसाब से, कैरेक्टर्स के मूड के हिसाब से रागों का चयन किया और उसमें मैंने लिखा भी। उसमें जब गौतम बुद्ध को माया तंग करती है, भक्ति में सक्सेस नहीं होने देती, तो 2 लाइनें थी मेरी लिखी हुई। जी, बताइए, गाएं। ममता अब तो बंधन तोड़, ममता अब तो बंधन तोड़, जाने दे मोहे सत्य शरण में, वाह जाने वाह वाह दे वाह, मोहे क्या बात है सत्य पंडित जी, वाह शरण में, वाह मेरा मार्ग छोड़, ममता अब तो वाह, बंधन तोड़। ये लिखा। क्या बात है, वाह वाह उसमें वाह। महर्षि शरण गुप्त साहब के काव्य को भी मैंने इस्तेमाल किया। जी। सखी वो मुझसे कह के जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा पाते। तो इस तरह से बहुत मेहनत करके मैंने काम किया और सिर्फ ये सिद्ध करने की कोशिश की कि हाँ, मैं खेमचंद प्रकाश जी जैसे महान संगीत निर्देशक का भांजा हूँ। और आप लोगों ने इस बहुत बात अच्छा, को स्वीकार किया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा, अब आपने आइए वाह वाह आपसे वाह वाह। आपसे एक आपने प्रार्थना करनी स्टैंडिंग है ललित जी। जी, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला करीब 20 मिनट का और आपने जी संस्कृत मुझे के याद है। श्लोकों का उसमें आपकी यूज कृपा किया। थी, आपकी कृपा थी। जी, तो बताएं, मैं आप बताएं। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि पन्ना जी मुझे तब सिखाते थे जब मैं रात को उनके चरण दबाता था और उनके सिर में तेल झिड़कता था, तब बातें करके मुझे सिखाते थे। महावीर जी की भी सेवा मैंने बहुत की। महावीर जी मुझे तब सिखाते थे जब मैं रास्ते में जाता आता था तो वो रागों के बारे में बात किया करते थे। और महावीर जी जिस राग का ज्ञान मुझे चलते फिरते देते थे, मैं उन दिनों जहाँ काम करता था उस राग में कुछ ना कुछ कंपोज कर लेता था। उन्होंने मुझे राग सिखाया गोरख कल्याण, जिसमें मैंने एक हाँ नृत्यांगना के लिए भजन बनाया। 2 लाइनें सुनाऊंगा। सारे मरे मार सा, जित देखूं चित श्याममयी है, जित देखूं चित श्याममयी है,
श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छई है जित देखो तित श्याममयी है। इसी राग में, धन्यवाद अनु जी, इसी राग में मैंने मेरी एक शिष्या से गवाया। मेरी एक शिष्या जो बैंकॉक में रहती है, उसका नाम है, देखिए मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उत्तरा सुकन्या जोशी। उसने अनूप जी आपके आशीर्वाद से भजनों की कॉन्सर्ट की पूरी, वो अकेली गाई और 1.5 घंटे तक ऑडियंस ने बैठ के सुना और धुनें सब मेरी थी। उनमें से एक थी ये गजल, इनके शायर का नाम आपको ललित जी बताएंगे बाद में। उस पूरे कार्यक्रम में गजलें चुनी ललित जी ने और उनकी पत्नी ने, संगीतबद्ध की मैंने और गाई उनकी बेटी ने, उत्तरा ने। उसमें से एक गजल मैं चाहूंगा कि उत्तरा हमें आके सुनाए, राग गोरख कल्याण में है। आइए उत्तरा। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये राजेश रेड्डी जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से भारत के बहुत ऊंचे शायर हैं। तो यहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा कि उत्तरा के लिए आप 2 गजल दे दें, तो उन्होंने 2 गजल दी। तो उनमें से ये एक गजल है, उत्तरा आप सुनाए इसको। नमस्ते सबको, प्रणाम गुरुजी, इजाजत है? जियो जियो जियो। अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं, खुद को समेटते हैं, यहाँ से वहाँ से हम। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया, उनको हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए, कुछ और कहते रह गए, अपनी जुबान से हम। वाह वाह वाह। और कहते रह गए, अपनी जुबान से हम। मरे सानी मारे मरे सानी मेरे मपा मारे मेरे नीधा मारे मेरे मधनी रे सानी मारे नीधा सा मारे नीधा सा रे मरे मारे नीधा सा। आईने से उलझता है जब भी हमारा आईने से उलझता है जब भी हमारा
हम क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहाँ से हम, कितने, कहाँ से हम, कितने, कहाँ से हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, शुक्रिया अनूप जी बहुत आपकी अच्छा, हौसला बहुत अफजाई के लिए और बाकी लोगों की बहुत अच्छा हौसला लगा। अफजाई के लिए। और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहूंगा अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं, कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं आप सुनाएं, इसके बाद मैं अनूप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय बात अनूप कहें। जी से पहले मैं जी जी थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए कार्यक्रम मेरा है भाई। अच्छा पंडित जी, एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक किस्सा जरूर सुनाएं। आप अक्सर हमसे अनौपचारिक रूप से ये बताते रहते हैं कि किस तरह से आपके भाई लोग जो आपके गुरु थे आपको बहुत ज्यादा हड़काते थे, तंग करते थे, आपसे दुनिया के काम करवाते थे पर आप काम करते थे। एक कोई छोटा सा किस्सा जरूर सुनाइए। मैं सुना देता हूँ, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हर संगीत निर्देशक का एक सपना होता है, वो एक धुन कंपोज करता है। गायक आते हैं और उसको अपने ढंग से गा के चले जाते हैं, सजा के जाते हैं, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं संगीत निर्देशक के मन में ये बात रह जाती है कि मेरी धुन के साथ वो बात नहीं हुई जो मैं चाहता था। हालांकि वो गायक सजा के ही जाते हैं। मेरी धुनों के बारे में सबने मेरी धुनें गाई हैं, लेकिन सबसे पहला नाम है बॉम्बे जयश्री का। जब वो सिर्फ जयश्री होती थी, वो जब गाती थी तो 100% वो गाती थी जो मैं चाहता था। वाह, उसके बाद में नाम आया मेरी पत्नी का, शशि पंडित। शशि 100% वो गाती थी जो मैं चाहता था। उसके बाद में नाम है अरुणि बग्गा का, 100% वो चाहती थी, वो गाती हैं जो मैं चाहता हूं। और आजकल उत्तरा जोशी है जो 100% वैसा गाती हैं जैसा मैं चाहता हूं। बात अनूप जोरटा की, अनूप जी की। अनूप जी ने मेरे बहुत गाने गाए हैं और अनूप जी ऐसा सजा कर गाते थे कि मुझे और आनंद आ जाता था। मैं इस बात को उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि ललित जी जो कह रहे थे कि मेरे गुरु मुझे डांटा करते थे, मैं आजकल जो कुछ हूं उसी डांट की वजह से हूं। धन्यवाद कि उन्होंने मुझे डांटा। मेरे मदन प्रकाश जी ने मुझ पर एक एहसान किया, मेरे सबसे बड़े भाई साहब। मैं 11 साल का था जब मैंने पहली बार धुन बनाई थी गजल की, 11 साल का था, उनको सुनाई। उन्होंने कहा, अरे नालायक, कंपोजर बनना चाहता है तो तुझे शायरी की तमीज होनी चाहिए। ये लफ्ज थे उनके, तुझे शायरी की तमीज होनी चाहिए जो नहीं है। तो मैंने कहा जी दीजिए। कहने लगे नहीं मैं नहीं। वो अपने मित्र जानिसार अख्तर साहब के पास मुझे ले गए और मैं 1.5 साल तक जानिसार अख्तर साहब के पास जाता रहा। वो मुझे उर्दू नहीं पढ़ाते थे, कुछ नहीं सिखाते थे, केवल अपनी बातें बताते थे और वही मेरे लिए शिक्षा थी। वहीं से मुझ में तमीज आई उर्दू पोएट्री की। फिर मंगलाबाई खेतान की कृपा से मैंने हिंदी साहित्य इतना पढ़ा कि मुझे उसकी तमीज आई। उसकी वजह से मैं आज थोड़ा बहुत कंपोज कर लेता हूँ। और कोई बात? बस आपने वो किस्सा लेकिन नहीं सुना है जब आपको उन्होंने बहुत तंग किया था और कहा था ये लेके आओ वो वाला किस्सा आप सुना है? 2 मिनट लग जाएंगे, चलिए लगा देता हूँ। बात पन्ना जी की है। मैं पन्ना जी के पास संगीत सीखता था, रहता था। पन्ना जी ने एक दिन एक बैले का म्यूजिक किया और वो करना नहीं चाहते थे, तो नृत्य निर्देशक ने कहा, कृष्ण कुमार जी बहुत बड़े नृत्य निर्देशक थे, कि पहले मैं डांस कंपोज कर लेता हूँ फिर तो म्यूजिक कर देना। पन्ना जी गए और उन्होंने 1.5 घंटे का बैले देखा, सिर्फ एक बार देखा और उसके बाद ऐसे गा दिए जैसे उन्होंने 50 रेसिली की हो। वहीं कंपोज कर रहे थे, वहीं गा रहे थे। रात को उन्होंने मुझसे पूछा, मैं उनके सिर में तेल जबरदस्त जता। ललित जी सुनने वाली बात है।
तो बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है। पन्ना जी मुझे बोले, क्यों बे, आज क्यों देखा या अंधा है? तो मैंने कहा जी देखा तो बहुत कुछ। क्या देखा? मैंने कहा जी आज देखा कि आप 1.5 घंटे का बैले ऐसे गा गए जैसे आपने 50 रेसले किए हो, कंपोज किया हो। कहने लगे हाँ यही बात देखने वाली थी, इसका मतलब तेरे पास आंखें हैं, पर अब बता दिमाग नाम की कोई चीज है या भूसा भरा है? तो मैंने कहा जी क्यों? बोले कैसे हुआ ये बता। मैंने कहा भाई साहब इसमें 2 बातें हैं। एक तो मालिक ने आपकी आवाज में वो नूर दिया है कि जो आप अपने जो भी गाते हैं दिल में उतर जाते हैं। कहने लगे मस्का कम लगा, काम की बात कर। मैंने कहा भाई साहब आपको ये मालूम है कि किस लफ्ज को कौन सा सुर चाहिए और उसकी अदायगी क्या होनी चाहिए? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, रात के 1:30 बजा था, वो दारू वारू पी के खाना खा के आराम कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोले भूख लगी है खाना ला। मैंने कहा जी अभी तो 1.5 घंटे पहले खाया है। बोले मेरा घर है, दोबारा नहीं खा सकता क्या? मैं गया, उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना था, मैं लेके आया। वो कुक बहुत अच्छे थे, लेके आया, मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने नाला तोड़ा, अनूप जी सब्जी भिगोई और मुझे खिलाया। कहने लगे खा। उन्होंने जीवन में पहली बार और आखिरी बार खिलाया। कहने लगे बेटा आज तू कंपोजर बन गया। जो आदमी ये समझ गया, ये महसूस कर गया कि किस शब्द को कौन सा सुर चाहिए और उसकी अदायगी क्या होनी चाहिए, वो कंपोजर हो गया। आज तो कंपोजर बन गया। उसी के इस आदेश पर आज भी चल रहा हूं। अनूप जी 2 लाइनें सुनने वाली हैं, मैं मानूंगा नहीं। जरूर। जनाब कदिल शिफाई साहब का किस थाई सुनाता हूं। शेर है कि या खुदा अब तू मुझे झूमता बादल कर दे, वाह वाह वाह। यूं वो बरसे कि मेरे प्यार को जलथल कर दे। तो या खुदा तो दुआ है, या खुदा दुआ है, झूमता शब्द भी है, और बादल जहां आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, वहां मल्हार आनी चाहिए अनूप जी मेरे मुताबिक। तो उसकी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, सुनिए। या खुदा, या खुदा अब तू इसे झूमता बादल कर दे। क्या बात है, क्या बात है। कर दे या खुदा अब तू इसे झूमता बादल कर दे। यूं वो बरसे, यूं वो बरसे, यूं वो बरसे कि मेरे प्यार को जलथल कर दे। या खुदा, या खुदा, या खुदा अब तू इसे झूमता बादल कर दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। आपने वाकई आज आनंदित कर दिया सबको। और मैं सभी लोगों से, जिन लोगों ने आज गाया है, जिन्होंने कोई भी इनपुट किया है, उन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नंदा जी को और बॉम्बे जयश्री और अरुणिमा, बहुत सारे लोग, अरुणी और बॉबी ऋषि। और अंत में मैं अनूप जलोटा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए एक मुख्य अतिथि की हैसियत से। और मैं चाहूंगा कि अब उनका समय है, वो हम लोगों से जो चाहे कहें और उसके बाद हम इसका समापन करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन काल में पंडित विश्व प्रकाश जैसे व्यक्तित्व को जाना है, उनके परिचय में आए हैं, उनके संगीत को सुना, उनके विचार सुने और उनके साथ काम किया। जब कभी ऐसा मौका मिलता है
तो मन को बड़ी खुशी होती है। बचपन में हम सोचते थे कि क्या हम कभी लता मंगेशकर जी को देख सकेंगे, लेकिन जी फिर समय ये आ गया कि हम लता जी के साथ गाने लगे। हमने उनके साथ गाना गाया, उनके घर में खाना खाया। तो ये होता है कि मन में जब इच्छा हो कि गुणी लोगों से मिलाई है, तो वो इच्छा पूरी होती है। विश्व वाह प्रकाश जी हमारे देश के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं और सभी कलाकार इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको इसीलिए देश से बाहर जाने की अनुमति दे सके, क्योंकि हम चाहते थे कि इनका जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैले। इसीलिए विश्व प्रकाश जी को बाहर जाने दिया, नहीं तो नहीं जाने देते हमें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज के कार्यक्रम में आपने मुझे भी स्थान दिया, जहां आपने इतने गुणी लोगों को सबको बुलाया है। चाहे मुझसे उम्र में वो छोटे हों, लेकिन मुझसे गुणी ज्यादा हैं ये लोग सब। भवदीप जी, राजीव जी, ये लोग सब बहुत गुणी लोग हैं। हम इनको सुनते हैं तो सुनते ही रहते हैं। भवदीप जी अपने पिताजी की झलक को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। भवदीप जब गाते हैं तो गोविंद प्रसाद जी की झलक ऐसी सुंदर आती है, जिनको हम लोग सारी रात रात सुनते रहते थे और न वो थकते थे न हम थकते थे। और यही बात उनके सुपुत्र में आई है, ये बहुत खुशी की बात है। राजीव महावीर एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी आंख से आंख मिलाता है कोई, जितनी बार सुनो कम पड़ता है। क्या बात बार है, बार लगा देते हैं हम क्या लोग बात सुनने है। को, बार बार लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि गले से निकले, तो कम वक्त निकलती नहीं वो जगह हमसे। क्या करें अब? वो लता जी के ही गले से निकलनी थी, हमारे गले से नहीं निकलती। तो ऐसे पिता के पुत्र राजीव अपने काम में निपुण हैं, जो कर रहे हैं सब बहुत अच्छा करते हैं। म्यूजिक भी देते हैं और कंपोजिशन बहुत अच्छा साथ में अरेंजमेंट करते हैं। अभी हमारे कुछ ही समय पहले एक भजन का इन्होंने अरेंजमेंट किया और बहुत बहुत अच्छा किया, म्यूजिक अरेंज कमाल का किया। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। ललित जी आपका जवाब नहीं है, आपने क्या महफिल सजाई है आज। आपको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और विश्व प्रकाश जी, आप 100 साल की जिंदगी पाएं और उस 100 साल की गिनती आज से शुरू हो, पुराना वाह सब वाह कैंसिल। वाह वाह, ये हम चाहते बहुत खूब, बहुत खूब। पुराना कैलकुलेशन नहीं चलेगा, आज से शुरू होता है 100 साल। क्या आपको बात है। बहुत मुबारक हो आज का दिन, और हम सब अनूप जी, आपको मुझे वो प्रणाम 100 करते हैं, साल प्रणाम तब करते हैं। कबूल है बहुत बहुत जब बड़ा। उन 100 सालों में मुझे आपकी मित्रता मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। अरे नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार, अनूप सबको जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपने कृपा की। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पांस। आप आए, आपने हम लोगों को इतना सम्मान दिया और पंडित जी को अब लोगों ने सबने सम्मान दिया, वो इस लायक हैं। और मैं अब सबको धन्यवाद देते हुए I would like to request Nanda ji if he wants to say a few lines, and after that we will all conclude. Thank you, Just Nanda ji, for only coming. literally 2 lines. This program has become really special because of the presence of Anup ji, a legendary singer, someone who has brought name and fame to our country. We are very grateful to Anup Jalota ji. And I remember the time when he and his father Purushottam ji gave benefit program to the Bhavan. I met Anup ji for the first time in 1978 in our old Bhavan, where only Yes. 50 people could it could accommodate. Even there, he sang with the same zeal, where he would sing with 20,000 people. That's Anup Jalota ji for all of us. Anup ji, thank you so much. You added weight to Thank you this so much, program Anil. Thank you and so giving much. our, Thank you you. know, honor to our Pandit Vishwa Prakash ji. Thank you for your very kind word. Thank you for your blessings for our Bhavan. Namaste. Thank you all for Namaskar. coming here and making this program such a great success. Lalit ji, thank you so much. Thank you everyone.